Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay, now I start Good your morning, sir. morning. Our topic was in last class moment distribution method. Okay. So today write one example of moment distribution method. I have already discussed about moment distribution method. 2 and 3 questions already solved. So write on next question for this. A continuous beam ABCD. Okay, a continuous beam ABCD. It's fixed at point A and simply supported at BCD. B simply supported, C simply supported, and D simply supported. And this beam is subjected to point loads and UDL. A point load 8 kilonewton is acting at a distance 1 meter from B. 1 meter from B. 8 kilonewton. Okay. And a point load 10 kilonewton acting in part BC at middle point 10 kilonewton. The distance from both sides is 1.5, 1.5. And the UDL is on part CD. The intensity of this UDL is 4 kilonewton per meter. Okay. And the total distance for parts is AB part is 4 meter. BC part is 3 meter. And CD part is okay. And the moment of inertia for these 3 parts is different. For part AB is 2I. For BC is 3I. And for part CD is 4I. Okay. So the question is, determine the support moments for the continuous beam and draw the bending moment diagram. Determine the support moments only you determine the support moments for the continuous beam by moment distribution method. Okay. When this type of question is come in your paper, they specify that solve this question by this moment or solve this question, so you can apply any methods like slope deflection method, moment distribution method, or unit load method, or any method you can apply. Okay,
But if specify that solve or determine the support moments by moment distribution method, so you can apply moment distribution method. Okay, so solve this question. What is the first step of this method? What is the first step? Hello. What is the first step of this method? That is moment distribution method is anyone? सर मोमेंट फाइंड आउट करेंगे ए बी पे. First of all, you consider this beam as a fixed beam. Okay. Consider this beam as a fixed beam, and then you calculate fixed end moments for every part. For all parts, you calculate fixed end moment. So first of all, step 1 is consider this beam as a fixed beam. Okay, fixed beam. Then find out fixed end moments. Okay, fixed end moment. So for part AB, BC and CD. So part AB, fixed end moment is M, AB, or we can say part AB is part, in AB part is BC, BA, then part in part BC, fixed end moment BC, then CB, and in part CD is fixed end moment CD and DC. So you calculate these fixed end moments and tell me the value. Hello. What is the formula for this portion for part AB? If a point load is acting anywhere in fixed beam, hello. In part AB, -1.5. -1.5. Okay, very good. 5 kilonewton. Yes, very good. 1.5 kilonewton meter. And fixed end BA is 4.5. 4.5 positive. Okay, 4.5 kilonewton meter. And part BC is, if a point load acting in a fixed beam, point load acting at middle point. So what is the formula? WL by 8. Okay, so from WL by 8, the value is what? -3.75. -3.75 kilonewton meter. And CB positive. Okay, because पॉजिटिव में होगा. at midpoint. So plus 3.75 kilonewton meter. And part CD is fixed end moment CD. If a
UDL is acting in a fixed beam. So the moment is WL square by 12. So calculate with this formula. -3 Minus, kilonewton per meter. okay, +3. -3 kilonewton meter. And for CD ADC plus 3 kilonewton meter. Okay. And if we are solving this question by moment distribution method, so there is two joints. First is B point and second is C point. So we can find distribution factor, and also we can find relative stiffness and total relative stiffness. With the help of total relative stiffness, we can find moment distribution method. So you make a table. So you make a table. First joint, then member, then relative stiffness, and then total relative stiffness, and then after distribution factor. So joint, then member, then here relative stiffness, then total relative stiffness, and then distribution factor. Okay. So here joint is how much? How much joints is here? 2 at point B and C. So joint is B and C, and the member is, first member is BA, then second is BC, then in third at point C the member is CB and CD. So in point joint B, member is BA, BC, and in point C is CB and CD. Okay. So tell me relative stiffness at point B in BA part. From here, in previous class, I told that the relative stiffness, if a beam is fixed beam, so the relative stiffness is I by L, and if there is a simply supported or hinge support, then the relative stiffness is 3 by 4 I by L. Okay, so part BA part is what? I like as a fixed beam. So both support is fixed. So the relative stiffness is I by L. So here I is 2I. 2I and L is 4. So the relative stiffness is I by 2 for BA, and for BC also this is a fixed beam. So I by L, here I is 3I and L is 3 meter. So 3 get cancel out. Final I, and part CB is, this is also a fixed beam. So CB is I by L, and the value is 1 minute.
value of I is 3I by L is 3. So I, and part C, D is this is a simply supported beam. Okay. This is a simply supported beam. So the value of relative stiffness is 3 by 4 I by L. So 3 by 4, the value of I is 4I and L is 3 meter. So 3 get cancelled out and 4 get cancelled out. The value is I. So put this relative stiffness in your table. First is I by 2, I. 2, I by 2. I by 2, I, then I. Okay. So tell me the value of total relative stiffness. Hello. Total relative stiffness at point G, at joint B. No. Total relative stiffness in part. First tell me at joint B. At joint B. Add these two only. And then after these two. 3I by 2 होगा sir. Okay, 3I by 2. Then second 2I. 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 Okay. Then tell me the value of distribution factor for each. Sir, AB के BA के लिए होगा sir 1/3. Okay, 1/3. Then BC के लिए होगा sir 2/3. Yes sir, okay. 2/3. 2/3. Then CB. CB के लिए होगा 1/2 and next 1/2. And 1/2 for CD part. Okay. Yes sir. This is second step. Step 2. Step 1 is this, and then after step 3, put this relative distribution factor and these fixed end moments in other table, where we can calculate our fixed end moment, support moments. So in next, this is our beam fixed at A. This is point B. This is C, and then D. Okay. So put your relative stiffness or distribution factor and fixed end moments. Everyone put your fixed end moments here. So the first moment is 1.5 minus, then 4.5. 1.5, 4.5 minus 1.5, 4.5. This is plus, and in part CB is minus 3.75 minus plus 3.75 and minus 3 plus 3. Minus 3.75 plus 3.75 then minus 3 and plus 3. Okay. This is your supports. And also write here distribution factor. In first,
1/3, 2/3, 1/2, 1/2, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, 1/2 and 1/2. What is the purpose to draw this diagram or table? Hello. What is the purpose? मूवमेंट निकालेंगे ना। To make this कैसे कैलकुलेट करेंगे? yes. To make this at this point D will be 0. To make moment at this point 0. Okay. हमको क्या करना है, इस पे 0 बनाना है। अभी कितना है, 3 है। ओके, 0 बनाना है। देन हमको क्या करना है, ऑल जॉइंट्स पे मींस प्लस माइनस करके हमको इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा, इक्विलिब्रियम कैसे होगा, जब इधर प्लस में होगा इधर माइनस में होगा, या इधर माइनस में इधर प्लस में होगा, तब वो क्या होगा, इक्वल, 0 के इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है कि 0 हो जाए, इस पे 0 हो जाए, इस पे 0 हो जाए, इस पे तो ऑलरेडी 0 होगा ही, क्योंकि ये तो सिंपली सपोर्टेड एंड है। ठीक है, तो सिंपली ये सपोर्टेड एंड पे क्या होता है, मोमेंट 0 होता है। यहाँ पे मोमेंट होता है, बस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, एंड फिक्स्ड एंड पे, फिक्स्ड सपोर्ट पे क्या होता है, मोमेंट, सम कुछ मोमेंट होता है, तो उस पे तो मोमेंट रहेगा ही। ओके, हेलो। यस सर। तो मुझे यहाँ पर जॉइंट मूवमेंट 0 है, हेलो, मूवमेंट होना चाहिए। क्या चीज, दोबारा बोलो। बीसी और एबी और बीसी दोनों जॉइंट पे 0 होना चाहिए सर। नहीं नहीं, बी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम जब हम उसको ऐड करेंगे दोनों, जैसे सपोर्ट मान लो ज्वाइंट बी ले रहे हैं, ठीक है, तो ज्वाइंट बी पर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को ऐड करने पे 0 आना चाहिए। दोनों मोमेंट को अगर मैं ऐड करूं लेफ्ट साइड और राइट साइड को, तो वो 0 आना चाहिए। वैसे इस पर भी है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का मोमेंट को हम ऐड करें तो 0 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट, जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, इंटरमीडिएट सपोर्ट जो होते हो एज ए फिक्स्ड सपोर्ट कहलाते हैं। ठीक है, फिक्स सपोर्ट ये है, और ये सिंपली तो सिंपली सपोर्टेड पे मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, एंड फिक्स सपोर्ट पे मोमेंट होता है, सम मोमेंट होता है। तो सम मोमेंट अगर मैं ये ज्वाइंट ले रहा हूं, तो ज्वाइंट पे 2 मेंबर होते हैं, इसके सी पर 2 मोमेंट, एक सीडी मेंबर हो जाएगा, एक सीबी मेंबर हो जाएगा। तो ठीक है, सीबी मेंबर पर सम मोमेंट्स होगा, और सीडी मोमेंट सीडी मेंबर्स पे कुछ मोमेंट होगा। तो दोनों को जब ऐड करें तो 0 आना चाहिए। ठीक है, अभी ऐड करो, 0 आ रहा है क्या? हेलो, अभी जब मैं ऐड कर रहा हूं तो 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मुझे इसको 0 बनाना है, मीन्स ऐड करें तो 0 हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, यहाँ पे, यहाँ तो 0 बनाना है, तो फॉर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, टू मेक दिस पॉइंट 0 इज -3 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी टोटल को ऐड करो, और ऐड करने के लिए क्या करना है हमको, 2 लाइंस बनाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर जब मैं कुछ मोमेंट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ मोमेंट अगर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मोमेंट पूरे मेंबर पे जाएगा। हेलो, हेलो, यस सर। ये Yes, पूरे sir. मेंबर, ये मोमेंट पूरे मेंबर पे जाएगा, तो इसका हाफ मींस कैरीवर, इसका कैरीवर ट्रांसफर होगा डी पर। ठीक है, सी पर ट्रांसफर होगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा,
minus 1.5. Okay, minus 1.5. So add all these values. यहाँ पे 0 है, अभी यहाँ पे 0 है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ना ही कैरी ओवर गया। ठीक है, तो अभी ऐड करना है कितना, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अभी इसको हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, minus 4.5, then add this plus 3.75. okay, add this, so this is 3.75, this is plus 4.5, and this 1.5. okay, then again, hello, hello, Yes, sir. then next step, calculate difference of these two. Calculate difference of these two. कितना डिफरेंस आएगा इन दोनों में, difference of these two and difference of these two. hello, 0.75. 0.75. ओके, इन दोनों का डिफरेंस आया है। यस सर, नेगेटिव में वो दोनों का आएगा ओके, मैं भी साथ में, और इसका पॉजिटिव में आएगा। एक मिनट, मैं भी सॉल्व करता हूँ, इधर सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं -4.75 एंड प्लस 7.75 अगर करता हूँ तो कितना आता है मेरा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कितना आया है तुम्हारा, 0.75। 0.75। ओके, 0.75 को मल्टीप्लाई करो 1/2 से, कितना आएगा, सर 0.375। ओके, 0.375। तो इसको काउंट कर लो, 0.37 या 8 रहे, 7, ठीक है, 7 ही रहने दो या 8 कर लो, ठीक है, 8 कर लो। बट ये आया है नेगेटिव में। ठीक है, जब भी नेगेटिव में आता है उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। ठीक है, अगर नेगेटिव में आया है तो उसको पॉजिटिव ले लो, अगर पॉजिटिव में आया है तो उसको नेगेटिव ले लो। तो यहाँ पर क्या आया है, नेगेटिव में आया है, तो इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो अगर मैं सपोज इन दोनों को डिफरेंस आया है कितना, पहले इतना आया 7.75, उसको मल्टीप्लाई किया हमने 1/2 से, तो कितना आया मेरा वैल्यू, 0.37। तो 0.37 या 0.38 समथिंग कुछ, तो इसको पॉजिटिव में एक साइड में 37 कुछ लेके चलो, देखो कितना आता है फिर लास्ट में। सपोज मैंने इस साइड में लिया है 0.37 और इस साइड में लिया है 0.38। ओके, हेलो, हेलो, यस सर। हाँ अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, ये तो इस पॉइंट जॉइंट पे हो गया। ठीक है, अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, 4.5 एंड 3.75, कितना डिफरेंस आया है 0.75 पॉजिटिव में। पॉजिटिव में। ठीक है, उसको इस पोर्शन के लिखने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई करो और इस पोर्शन पे लिखने के लिए 2/3 से मल्टीप्लाई करो इसको। तो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1/3 से, कितना है, तो 0.25। 0.25। okay, 0.25। so write down in this side 0.25।
अब मैंने क्या बोला था, अगर वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव में आया है तो उसको नेगेटिव बना देना है, ठीक है, उसको नेगेटिव बना देना है, नेगेटिव कर दिए तो -0.25। ओके, मीन्स इतना हमको माइनस करना है यहाँ पे जो आया है कैरी ओवर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। और दिस साइड में कितना आया है, 0.75 को मल्टीप्लाई को 2/3 से कितना है, 0.5 sir. कितना 0.5. 0.5। ओके 0.5, ये पॉजिटिव में है तो इसको नेगेटिव बनाना है, ठीक है, -0.5। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी देखो मैंने ये नया मोमेंट इंट्रोड्यूस किया, ये भी नया मोमेंट इंट्रोड्यूस किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, ठीक है, चारों मेंबर में हमने क्या किया, नया मोमेंट इंट्रोड्यूस किया। जब मोमेंट कभी भी हम ऐड करते हैं तो उसका कैरी ओवर नेक्स्ट ज्वाइंट पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, उसका कैरी ओवर मीन्स हाफ जो है उसका नेक्स्ट ज्वाइंट पे ट्रांसफर हो जाता है। तो सपोज यहाँ पे मैंने -0.5 ऐड किया है तो इसका इस ज्वाइंट पे कितना ट्रांसफर होगा, हाफ, तो हाफ कितना होगा इसका 0.25. 0.25, वो भी माइनस का, ठीक है, -0.25। ओके, अभी मैंने ये ऐड किया है -0.25, तो इसका हाफ यहाँ पे ट्रांसफर कितना होगा, माइनस का हेलो माइनस, सर समझ में नहीं आया। 0.125. क्या नहीं समझ में आया उसको सुशीला? यस सर। देखो जब भी हम किसी भी ज्वाइंट पे कोई मोमेंट ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो जो मोमेंट ऐड होता है उस ड्यू टू दिस मोमेंट जो ऐड हो रहा है उसके कारण दूसरे ज्वाइंट पे क्या होता है, सम मोमेंट फील होता है। तो वहां पे जो मोमेंट फील हो रहा है तो कितना फील हो रहा है, ड्यू टू दिस दिस मोमेंट, इस मोमेंट के कारण दूसरे पे मोमेंट फील होगा, तो कितना मोमेंट फील होगा, इसका कैरी ओवर जाएगा, कैरी ओवर मतलब इसका हाफ जाएगा, तो इसका हाफ कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, यहाँ पर भी हम नया मोमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन्स ऐड कर रहे हैं इतना मोमेंट, तो इसका हाफ इधर जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पर ऐड किया तो अभी इधर आएगा, यहाँ पर ऐड किया है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये करना है मुझे, आया समझ में? यस सर। 0.125. 0.125 को 13 लिख सकते हैं क्या? ओके, ठीक है, अभी इतना हो गया। अभी मुझे क्या करना है, ये तो हो गया, मैंने बी पॉइंट पे जो मोमेंट ऐड किया था उसका कैरी ओवर मैंने लिख दिया, ठीक है। देन सपोर्ट एट ज्वाइंट सी we have introduced two moment in left side and right side, so carry over of this moment will be transfer here, so what will be the carry over, इसका कितना आएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना दो मोमेंट को, तो इसका हाफ कितना आएगा इधर 0.19. प्लस का हाँ। 0.19, ओके, प्लस का 0.19, एंड इतना ऐड मैंने यहाँ पे किया तो इधर कितना आएगा, जीरो पॉइंट 0.18. कितना आएगा 0.18. 0.18, ठीक है। तो इधर लिखने का जरूरत है क्या, नहीं लिखने का जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड एंड है, तो सिंपली सपोर्टेड पे हम जानते हैं कि 0 ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफर करने का कोई जरूरत ही नहीं। आया समझ में? यस सर।
क्योंकि सिंपली सपोर्टेड जो होता है उस पे मोमेंट जीरो होता है, तो वो ट्रांसफर भी हो जाएगा तब भी जीरो ही रहेगा, उस पे कुछ मोमेंट फील नहीं होगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी फिर से वही प्रोसेस करना है। क्या प्रोसेस करना है, इसको इरेज कर दो। अभी प्रोसेस क्या करना है, हम लोगों ने ये नया मोमेंट क्या किया है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया, फिर से ये नया मोमेंट इंट्रोड्यूस हो गया, फिर यहाँ भी इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे मेरा इस ज्वाइंट पे जीरो है, इस ज्वाइंट पे इस मेंबर पे जीरो है, और यहाँ तो ऑलरेडी जीरो है ही, इधर से जो जीरो आ रहा है मीन्स इसका कैरी ओवर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, इसका कैरी ओवर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, इसका कैरी ओवर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, फिर से इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड सॉरी इन दोनों को क्या करो, डिफरेंस लो इन दोनों का, और इन दोनों का डिफरेंस लो, जितना भी डिफरेंस आए इससे मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड में राइट डाउन करो। ठीक है, इधर भी दोनों का डिफरेंस लो, इनसे मल्टीप्लाई करके इधर लिखो, इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखो, कितना है जो मैंने यहाँ पे किया था, जो मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, सेम यहाँ पर भी करो इन दोनों जॉइंट्स पे। बताओ कितना कितना आया, यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, कितना कितना आएगा। सपोज मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो जीरो में से कितना जाएगा, तो सेम ही रहेगा। अभी क्या करना है, अच्छा मीटिंग तुम्हारा 1 मिनट ही लेफ्ट है, ठीक है, तो तुम लोग ये वैल्यू थोड़ा सा याद रखना, कितना वैल्यू आया है, पूरा काउंट लास्ट में मैं काउंट करूंगा। हेलो हेलो, यस सर। सर हाँ ये